Hello my dear friends. In previous lecture we discussed about stoichiometric defect which are observed in non-ionic solids and ionic solids. Non-ionic solid two types of defects are observed. First one is the vacancy defect, second one is interstitial defect. And in ionic solid two defects are observed. First one is Schottky defect and second one is Frankel defect. Now today we will discuss regarding the non-stoichiometric defects and what is the difference between stoichiometric and non-stoichiometric defect. In stoichiometric defect, the stoichiometry of compound is not affected, so ratio of positive and negative ion remains same. In non-stoichiometric defect, the stoichiometry of crystal affected, means in non-stoichiometric defect the ratio of positive and negative ion not remains same, it will be different. For example, see here written some examples. VOX means vanadium and oxygen not in a specific ratio. ZNO, so in ZNO also this X not in a specific ratio. X is always less than 1, not 1:1 ratio if defect is present. See, another one best example is FeO, ferrous oxide. See here. So FeO, if defect is not present, then FeO is in a 1:1 ratio. But see here, oxygen is 1, but Fe is of 0.93 to 0.96. Means 0.93, 94, 95 and 96, not 1:1. So it is clear here defects are present. So which type of defects are there? So write down first question, and that defect is explain metal excess defect. Metal excess defect means in a crystal metal ions are more. So metal excess defect arises due to two reasons. First one is anion vacancies. So in one class, suppose 10 boys are there and 10 girls are there. Okay. So say boys are positive ions and girls are negative ions. So if three girls are absent, means what does it mean? Automatically boys increases. So boys increases due to absence of girls. Similar way, positive ion means metal ion increases due to the anion vacancies. Negative ions are absent. Second reason is, and that one is due to presence of extra cation. Let us consider the same example once again. Suppose in one class 10 boys are there and 10 girls are there. But from outside 3 boys are increases. If 3 boys are increases, then boys are becomes 13 and automatically the positive ion increases. So positive ion increases two ways, either negative ion absent or extra cations are present. Generally, these defects are observed in metal crystals, okay, in which positive and negative ion presence. So, this metal excess defect arises due to these two reasons. So, what happens? Let us consider first one. First one is what? That is anion vacancies. What is there in anion vacancies? Generally in the crystal, negative ions are missing from its original site. Okay, leaving hole, and in that hole electrons remain entrapped. Due to this, the neutrality of crystal is maintained. See here the diagram. See, A plus B minus, A plus B minus, but at this place negative ion is absent.
And as negative ion is absent, so what is present there? In place of negative ion, electron remain trapped in at anion vacancy, and this electron where anion should present but here electron is present is called F center. The full name of F center is Farben-Center center. Which center? Farben-Center center. It is called F center. Farben-Center is a Greek word and Farben-Center means colored center. Okay. तो ये डिफेक्ट एकदम सीधी सादी है, नेगेटिव आयन मिसिंग है, उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन है। वो कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। सो ड्यू टू दिस पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस, अगर नेगेटिव मिसिंग है तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएंगे। सो ये डिफेक्ट ऑब्जर्व होती है जो क्रिस्टल में स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाने की टेंडेंसी रहती है। सो दोज क्रिस्टल्स विच हैव लाइकली टू अपीयर Schottky defect, always this defect is present there, metal excess defect. So F center, I told you it is called the Farben-Center center or colored center, and due to this electron entrapped in this anion vacancy, by absorbing energy it jump from lower level to higher level. Okay, and then once again come back to higher level to lower level by emitting energy, and this emitting energy is from visible region, and the color which is emitted by this electron, that color of the crystal is appear. So let us understand by taking one example. See, if NaCl crystal is heated in presence of sodium vapor, then on this NaCl crystal the sodium vapor is deposited on the surface of NaCl, and the crystal Cl minus present inside, this Cl minus attracted on the surface. Okay, and when chlorine minus attracted, then that chlorine minus leave this electron on its place where it is present. ओके, जहाँ पे वो क्लोरीन ऊपर सरफेस की तरह अट्रैक्ट होता है, वही वहाँ पे वो ये क्लोरीन एज ए क्लोरीन गैस ऊपर की तरफ अट्रैक्टेड होता है ड्यू टू द सोडियम वेपर। जब भी आप इसको when you heated sodium chloride crystal in presence of sodium vapor, then sodium solid is deposited on the surface of sodium chloride, and when sodium vapor surface deposited on surface, then chlorine minus from the crystal is attracted as a chlorine gas by leaving one electron, and that electron remains at the place of chlorine minus, and that is called the entrapped electron. Is it clear? Entrapped electron. Now the chlorine which is attracted on the surface due to presence of sodium vapor deposited, at that time when this chlorine attracted on the surface, at that time the deposited sodium converted into sodium plus an electron release, and that electron once again accepted by this chlorine and converted into chlorine minus. C, that chlorine minus which is attracted from crystal by accepting this electron here, and it converted into chlorine minus. This sodium plus and chlorine minus at the surface of the crystal is form a new crystal. It is called NaCl. So the size of crystal is increases, new NaCl is formed on the surface. When crystal having F center, जो क्रिस्टल जिसमें ऐसे F centers होते हैं, ठीक है, तो when they are heated, then they impart color due to the presence of this type of electrons. Is it clear? तो इसमें न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे होती है, क्योंकि क्लोरीन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन वो पीछे छोड़ के जा रहा है, तो पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में अगर ये डिफेक्ट प्रेजेंट है तो सोडियम क्लोराइड येलो कलर का दिखेगा। KCl में ये डिफेक्ट प्रेजेंट है, आप इसको हीट करेंगे, उसमें फार्बन सेंटर प्रेजेंट है तो वायोलेट यानी कि लिलाक कलर का दिखेगा। और लिथियम क्लोराइड में
अगर ये डिफेक्ट प्रेजेंट है तो ये पिंक कलर का दिखेगा, और डिफेक्ट प्रेजेंट होती ही है, कोई भी क्रिस्टल 100% प्योर नहीं होता है। अब दूसरी डिफेक्ट नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में अगर देखें तो एक्सेस मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन। यहाँ पे नेगेटिव आयन कोई मिसिंग नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं से बाहर से एक्स्ट्रा केटाइन अंदर एंटर हो रहे हैं, क्योंकि केटाइन्स आर ऑलवेज स्मॉलर, so it present in interstitial site, so extra cations are present in interstitial sites। अब जब भी मैं इंटरस्टिशियल साइट लिखूंगा तो शॉर्ट में लिखूंगा IS, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। तो ये क्रिस्टल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, जितने भी A+ एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन बाजू वाली इंटरस्टिशियल साइट में रहेंगे, ठीक है। ये देखिए डायग्राम, जैसे कि यहाँ सब पॉजिटिव नेगेटिव आयन प्रेजेंट है ना, सब पॉजिटिव नेगेटिव आयन इस क्रिस्टल में प्रेजेंट है, कोई मिसिंग नहीं है, लेकिन कहीं और जगह से ये A+ इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया क्रिस्टल का, the positive charge of the crystal increases, so in the neighboring site interstitial site one electron is entrapped। क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, तो ये जब A+ एंटर हुआ तो A+ कैसे बना, A is A+ by releasing one electron, तो जैसे ही A+ एंटर हुआ तो उसका एक इलेक्ट्रॉन बाजू में आ गया, ठीक है। तो ये this defect is observed in crystal which likely to develop Frankel defect। तो जो पहले वाली मेटल एक्सेस थी वो जिस क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट ऑब्जर्व होती है उसमें दिखाई देती है। ये एक्स्ट्रा केटाइन वाली जो डिफिकल्टी है जिस सॉलिड में फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाई देती है उसमें ये डेवलप होती है। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को आप गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन है जो उसमें से निकल जाएगा। इज इट क्लियर? ऑक्सीजन निकल जाएगा, एज मानो कि एक ऑक्सीजन निकल गया बाय लिविंग Zn is already present at Zn2+, but this oxygen release as a oxygen is present as a O2-, so it converted into 1/2 O2 by releasing 2 electron। तो ये ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गया, इसमें क्रिस्टल की साइज कम होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक जिंक ज़्यादा हुआ, अब उसकी एक साइड जो नेगेटिव थी वो तो एज ए ऑक्सीजन रिलीज हो गई हवा में, तो एक Zn2+, एक Zn2+ इंक्रीज हुआ, एक Zn2+ इंक्रीज हुआ तो +2 चार्ज इंक्रीज हुआ, एक ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नेबरिंग साइट में आ जाएंगे, नेबरिंग साइट में रहेंगे, तो ये पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। चलिए इसमें मैं समझाता हूँ कि समझ लो कि इसको मैंने हीट किया ये क्रिस्टल को, तो ये B- निकल गया, तो B- कैसे निकलेगा, B- गिव्स 1/2 B2 gas, is it clear, and by releasing 1 electron by oxidation। तो ये B- निकला तो एक A+ फ्री हो जाएगा, ठीक है, B- ये निकल गया तो एक A+ फ्री हो जाएगा, वो A+ अपनी साइट छोड़ के कहीं इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा, एंड व्हेन इट मूव टू द इंटरस्टिशियल साइट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव आयन ने छोड़ा वो यहाँ नेबरिंग साइट में रहेगा, तो ये पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन इसमें पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, नेगेटिव आयन कम है, तो नेगेटिव आयन तो पॉजिटिव आयन बढ़ जाने की वजह से तो क्रिस्टल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब मैं राउंड कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन किसी नेबरिंग साइट में रह के न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, ठीक है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे Zn2+ जो रिलीज्ड हुए दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, एंड उसके साथ जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो बाजू वाली साइट में रहेंगे। सो ड्यू टू दिस डिफेक्ट ZnO
में अगर ये डिफेक्ट नहीं है तो ये वाइट कलर का होता है, अगर ZnO में ये एक्स्ट्रा कैटायन वाली डिफेक्ट है तो वो येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, इट्स कलर बिकम्स येलो। इज इट क्लियर? और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डिफेक्ट द न्यू फॉर्मूला बिकम Zn1 प्लस एक्स, क्योंकि ZnO में अगर डिफेक्ट नहीं है तो फॉर्मूला है 1:1। अब ऑक्सीजन निकलता जा रहा है बाय हीटिंग, तो Zn2 प्लस ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। जैसे मैंने बोला था ना कि क्लास में से लड़कियां निकल रही है तो लड़के ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ठीक है, तो लड़के बढ़ रहे हैं, वो 1 प्लस एक्स। अब ये ऑक्सीजन निकल रहा है, तो नया फॉर्मूला ड्यू टू दिस डिफेक्ट होगा, वो होगा Zn1 प्लस एक्स ओ। ओके, Zn बढ़ता जा रहा है और न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बाय इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय, एक ऑक्सीजन क्रिस्टल से निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक Zn फ्री होगा, तो Zn तो अंदर ही रहेगा, Zn नहीं निकल पाएगा। मेटल का जो है पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप की डिफेक्ट है। एंड दिस एंट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन बाजू वाले नेबरिंग साइट में रहते हैं, ये एक दूसरा भी फायदा होता है कि इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। न्यूट्रलिटी, वो तो क्रिस्टल छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे लेकिन अंदर घूम तो सकते हैं, एक इंटरस्टिशियल साइट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड। तो if this defect is present, so for electrical conductivity this defect is good, and due to these free electrons in entrapped in the neighboring site, the electrical conductivity of the crystal increases. Okay, तो ये थी मेटल एक्सेस, और आप बोल सकते हैं एक्सेस मेटल डिफेक्ट। और अब उससे उल्टी डिफेक्ट आ रही है, एंड दैट वन इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल कम है उसमें, थोड़ा समझिएगा, कंफ्यूज मत होइए, एक 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 के बाद एक थियरी को क्लियर कट समझने की कोशिश करिएगा। तो इन दिस डिफेक्ट द पॉजिटिव आयंस आर मिसिंग। अब वहां पहले क्या था, नेगेटिव आयंस आर मिसिंग, एंड ड्यू टू द मिसिंग ऑफ नेगेटिव आयंस द पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस, एक्सेस मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, सेकंड की बात कर रहा हूँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस, वहाँ इनडायरेक्टली आप देखें तो नेगेटिव आयन ही मिसिंग हो रहा है, वो हम हीट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लीव करके अपनी साइड छोड़ रहा है, लेकिन कैटायन जो है वो अंदर ही अंदर है, तो अपनी पोजीशन छोड़ के वो इंटरस्टिशियल जा रहा है। यहाँ इस डिफेक्ट में मेटल डिफिशियंसी, बाय बर्थ पॉजिटिव आयन प्रेजेंट ही नहीं है, उसकी ओरिजिनल साइट में जहाँ पॉजिटिव आयन होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, तो नेगेटिव आयन तो कंप्लीट है, पॉजिटिव आयन मिसिंग है। तो पॉजिटिव आयन मिसिंग है तो नेगेटिव आयन इंक्रीज हो जाएंगे, तो ओवरऑल क्रिस्टल नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो अब क्या उसका सॉल्यूशन है, तो कोई एक पॉजिटिव आयन अपने ऊपर हायर चार्ज एक्वायर कर लेता है। मानो कि A प्लस है और नेगेटिव आयन बढ़ गए ड्यू टू द मिसिंग ऑफ पॉजिटिव आयन, तो ये A प्लस जो है वो अपने ऊपर +2 चार्ज ले लेता है, या तो +3 भी अगर ज़रूरत पड़ी तो ले लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफेक्ट उसी क्रिस्टल में पॉसिबल है जिसके पॉजिटिव आयन जो मेटल के है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो। एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं तो FeO, तो Fe के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3। इज इट क्लियर? FeS आयन सल्फाइड, निकल ऑक्साइड वेल नोन एग्जाम्पल है, जो FeO के क्रिस्टल में ये Fe मिसिंग रहते हैं बाय बर्थ, कुछ गर्म नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये डिफेक्ट प्रेजेंट होती है बाय बर्थ, तो ये FeO में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। अब कुछ Fe मिसिंग है तो ऑक्सीजन तो पूरे प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाइड करने के लिए कोई
Fe अपने ऊपर Fe3+ चार्ज एक्वायर कर लेता है और ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन। चलिए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लो कि ये कोई क्रिस्टल है और यहाँ पे इस पोजीशन पे यहाँ पे एक कैटायन मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए तो पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 7 पॉजिटिव है +7। नेगेटिव कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव 8 है। तो ओवरऑल क्रिस्टल क्या हुआ, -1 चार्ज हुआ। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव मिसिंग है बाय बर्थ, कैटायन वैकेंसी, ये क्रिस्टल में डिफेक्ट होती है। तो अब यहाँ पे भी +8 करने के लिए किसी एक को अपने ऊपर +1 की जगह पे +2 चार्ज एक्वायर करना होगा। तो यहाँ पे +2 है, अब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हो जाएगा +8, ये +8 हो गया न्यूट्रल। तो टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी मेटल एक्वायरिंग हायर चार्ज, क्योंकि एक पॉजिटिव कम है तो कोई एक पॉजिटिव आयन को अपने ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ले लेना होगा। क्योंकि इसलिए तो मैंने बोला कि इसमें पॉसिबल है जिसमें एक मेटल एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है, Fe2+, Fe3+, Na+, Na2+, लाइक दैट, है ना, कॉपर प्लस कॉपर 2+। इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्लॉक एलिमेंट ये दिखा सकता है। इज इट क्लियर? सो this, after discussing these 3 defect, we have to discuss the impurity defect। इससे पहले इसको ध्यान से, तीनों डिफेक्ट को आपको ध्यान से समझ लेना है कि किस में क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि कौन किसकी वजह से ये डिफेक्ट प्रेजेंट आ रही है। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा उसका एनिमेशन देख लेते हैं। See here on your screen, this is a non-stoichiometric defect. See, the ratio of combining elements in the compound is different, means positive and negative ions are not same. This defect is either due to the presence of excess metal ions, okay, or excess non-metal ions. Is it clear? Non-stoichiometric compounds, इसमें 2 टाइप की डिफेक्ट होती है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जो मैंने ये 3 डायग्राम से आपके साथ डिस्कस की। इज इट क्लियर? तीन चीजें ध्यान में रखनी। पहली, एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी मीन्स एनायन इज मिसिंग, सो कैटायंस बिकम्स एक्स्ट्रा। तो लेट अस डिस्कस द मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ये पूरा क्रिस्टल है M+X-, इसमें से देखिए X- निकल गया तो वहां पे वैकेंसी आ गई, तो उस वैकेंसी की जगह पे इलेक्ट्रॉन एनट्रैप्ड हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन एनायन की जगह पे आ गया, ये उसको हम बोलेंगे एफ सेंटर, एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल इज ड्यू टू दिस एफ सेंटर, एंड दिस इज कॉल्ड फार्बेन सेंटर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर सेंटर। कलर ऑफ द क्रिस्टल इज ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एफ सेंटर्स। Generally, it is shown by alkali halides like sodium chloride, potassium chloride, etc. Sodium chloride का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। Second is the metal excess defect due to the presence of extra cation at interstitial site। वही क्रिस्टल है, कोई मिसिंग नहीं है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कैटायन बाहर से प्रेजेंट है, अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यस, देखिए यहाँ इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन आ गया। ये ऐसे बाहर से नहीं आते, ये क्रिस्टल में से ही मेंटेन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से बाहर से कैटायन आ गया, ZnO को हम गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन निकल जाता है, Zn एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन के ही अंदर एंट्रैप्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जिंक ऑक्साइड है, देखिए
जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो ये येलो कलर के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें ये डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट। ऐसे सोडियम क्लोराइड में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये जिंक ऑक्साइड, जितने जिंक बढ़ रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नेबरिंग साइट में एनट्रैप्ड हो रहे हैं। ठीक है, किसी भी हाल में, और कंडक्टिविटी ऑफ दिस क्रिस्टल ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू दिस टाइप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक अच्छी है, आपको किसी भी डिफेक्ट में उसको चार्ज नहीं दिखाना है, किसी भी तरह से आपको न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। अब देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये दो जगह पे मेटल एब्सेंट है। ठीक है, अब मेटल एब्सेंट है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो अब जो बाकी मेटल बचती है ये गलत है, ये गलत है। उसकी जगह पे यहाँ पे तो वैकेंसी ही रहती है भाई साहब, ये जो है वैकेंसी ही रहती है, ये वैकेंसी ही रहती है। लेकिन जो प्रेजेंट है मेटल, वो दो मेटल प्लस गायब हुए तो ये +2 एक्वायर करेगा, या तो ये एक दूसरा +2 एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो दो चार्ज मिसिंग हुए, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, और ये भी शायद सही हो सकता है, क्योंकि अब ये दूसरा नहीं लाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार आपको जरा क्लियर कर दूं, पहले यहाँ क्या था M+, यहाँ भी क्या था M+। ठीक है, तो ये दो M+ निकल गए, मतलब कि +2 चार्ज डिक्रीज हुआ। तो बाहर से, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट वाली बात हो गई कि बाहर से अगर कोई एक ऐसा आयन डालो M जिसके पास +2 चार्ज हो, 2+, 2+। ठीक है, अब यहाँ पे वैकेंसी रहेगी, यहाँ पे नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि कोई एक मिसिंग है, समझ लो। ये डायग्राम सही है कि चलो ये मिसिंग हो गया तो एक प्लस चार्ज कम हुआ, एक प्लस चार्ज कम हुआ तो या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों में से कोई एक अपने ऊपर +2 ले लेगा। ठीक है, तो दिस क्रिस्टल बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। रिप्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से ये गलत है। एक ही आयन मिसिंग है तो बाजू वाला +2 एक्वायर कर लेगा, बाहर से कोई +2 नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एक होल ही रहेगा, ये देखिए ये वाला होल ही रहेगा। इज इट क्लियर? Same is observed in FeO crystal. This one is the iron oxide. पिंक कलर के ऑक्सीजन है Fe। अब जो इतने 3 Fe मिसिंग हो गए, मतलब +6 चार्ज, तो उसकी जगह पे 2 Fe2 3+ आ जाएंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे। तो Fe2+ अगर मिसिंग है तो बाजू वाले कोई भी अपने ऊपर +3 चार्ज एक्वायर कर लेगा। इज इट क्लियर? इसको जरा समझिएगा, यहाँ 3 थे, 1 2 और यहाँ 3, ये सब क्या थे Fe2+। 3 निकल गए मतलब कि +6 चार्ज कम हुआ। अब +6 चार्ज कम हुआ मतलब कि वो मेंटेन करना है, तो ये जो 3 जगह से Fe2+ निकल गए, तो अगर 2 जगह पे Fe3+ आ जाते हैं तो ये देखिए +6 चार्ज मेंटेन हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मानो कि ये एक ही जगह से एक Fe2+ निकल गया। थोड़ा समझिएगा, बहुत इजी डिफेक्ट है। तो कितना चार्ज कम हुआ? +2। तो मुझे +2 ही मेंटेन करना है, तो बाजू में से कोई भी, यहाँ पे ये जो Fe2+ प्रेजेंट था वो अपने ऊपर +3 ले लेगा +2 की जगह पे। यहाँ जो Fe3+ प्रेजेंट 2+ प्रेजेंट था वो अपने ऊपर +3 चार्ज ले लेगा। तो ये +2 थे पहले, अब +3 हो गए, तो दोनों में एक एक बढ़ गया। जो +2 कम हुआ वो +2 मेंटेन कर दिया, नेगेटिव तो कम हो ही नहीं रहे। इज इट क्लियर? तो इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट
डिफेक्ट और लास्ट डिफेक्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लेकिन इसका रिलेटेड हमें थोड़े कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, इसलिए हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। See here on your screen, this one is a competitive question, it is not given in our book। ये आपको एज लेंथ दी है 556 पिकोमीटर, A is equal to 556 picometer, is it clear? And if 0.1% Schottky defect is present and 0.1% Frankel defect is present, then what will be the change in the density? तो पहले तो दो प्रॉपर्टी आपको समझनी है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी को कोई इफेक्ट नहीं होती है, तो सीधा डेंसिटी वाला फॉर्मूला ले लीजिए। लेकिन शॉटकी डिफेक्ट में जितने भी साइट्स 0.1% है, तो टोटल एफसीसी में 4 स्फीयर्स होते हैं। एफसीसी में कितने होते हैं? 4 स्फीयर। अब कितने कम हो रहे हैं 0.1% शॉटकी डिफेक्ट से, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये मैं सीधा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम है, बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। So see here on your screen, that problem solution is there. This is rho written, it is nothing but density, Z is equal to 4, और कैल्शियम का है तो एटॉमिक मास इसका रहेगा 40, एवोगेड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, और जो एज लेंथ है 556 पिकोमीटर, उसको हम करेंगे A³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻30, ठीक है। पिकोमीटर का जो मीटर में फॉर्मूला है ये आ रहा है, तो ये A³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻30 हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डेंसिटी, फिजिक्स में आप डेंसिटी के लिए रो यूज़ करते हो, यहाँ हम डेंसिटी के लिए यूज़ करेंगे डी, हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से। अब देखिए शॉटकी डिफेक्ट की अगर हम बात करें, तो शॉटकी में तो डेंसिटी चेंज हो रही है, तो कितना है 0.1% शॉटकी डिफेक्ट है, तो 4 एटम होने चाहिए, 0.1% गायब है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 100, तो Z की वैल्यू आएगी 3.996। अब कुछ नहीं करना है, Z की जगह पे रख लीजिए 3.996, ठीक है, ये रख दिया। कैल्शियम का क्रिस्टल है तो एटॉमिक नंबर रहेगा उसका 40, ये रहा। बाकी Na की वैल्यू और A³ जो आगे वाला है वो सेम, तो आपके पास अब देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे डेंसिटी में क्या चेंज आया 1.544, आगे की डेंसिटी क्या थी 1.546, और यहाँ पे 544, तो थोड़ा सा माइनर चेंज आ रहा है। तो हम लोगों ने बोला ही है कि शॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ कैटायन एंड एनायन, एंड हियर डेंसिटी नॉट अल्टर्ड बिकॉज कैटायन इज नॉट एब्सेंट प्रेजेंट इन एनीवेयर इंटरस्टिशियल साइट, इट इज प्रेजेंट एनीवेयर इन इंटरस्टिशियल साइट, ओके। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब देखते हैं इन टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। See here one question in text, I think 19 number question is there in our textbook. So what type of defect arises when a solid is heated, and which physical property is affected by it, and in what way? Very easy question. On heating a solid, vacancy defect is produced in a crystal, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये हीट के एब्सॉर्ब करने से होती है। बिकॉज ऑन हीटिंग what happens, some lattice sites become vacant, and as a result this defect arises and density of the substance decreases because some atoms or ions leave the crystal completely, okay। तो ये इसका आंसर है। और 20 नंबर का भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे 19 नंबर है, वो भी
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट शोन, ये बोर्ड के लिए काम आ सकते हैं क्वेश्चन, बाय जेडएनएस एंड एजीबीआर। तो एजीबीआर तो मैंने बोला था कि दोनों इफेक्ट डेवलप कर रही है, दैट वन इज द इन एजीबीआर। एजीबीआर अकेला ऐसा क्रिस्टल है जिसमें दोनों डिफेक्ट यानी फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की दिखाई देती है। और जेडएनएस में सिर्फ फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि Zn+2 एंड S2- साइज में बहुत फ़र्क होता है, ये बहुत छोटी साइज होती है S- से, तो इसमें फ्रैंकल ही डेवलप होगी। एजीबीआर एक ऐसा क्रिस्टल है जिसकी साइज ट्रांजिशन स्टेट पे पड़ती है, तो इसमें फ्रैंकल के लिए भी ये सूटेबल है, शॉर्टकी के लिए भी सूटेबल है। बहुत बार गुजकेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगर नीट का पेपर कंसीडर करें तो उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल शोज बोथ डिफेक्ट्स। और इसके बाद एक इंटेक्स में क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड in an ionic solid when a cation of higher valence is added as an impurity। नहीं, ये impurity डिफेक्ट के बाद सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये impurity डिफेक्ट का क्वेश्चन है। तो अभी एक डिफेक्ट बाकी है, दैट इज impurity डिफेक्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे। और एक बढ़िया प्रॉब्लम है जो ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट वाला है, एक प्रॉब्लम से मैं समझाऊंगा, दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इतने ऐसे जितने सारे प्रॉब्लम आते हैं वो आपको इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। मैं एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। शायद दैट प्रॉब्लम इज गिवन इन आवर एक्सरसाइज बैक साइड, लेट अस सी। See here, this problem is already given in our exercise and I think that problem number is 16। आप जरा एक्सरसाइज में चेक कर लेना कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 16 नंबर दिया है, आप जरा एक्सरसाइज में देख लें तो हाँ 16 नंबर का ही है, एक्सरसाइज में 16 नंबर प्रॉब्लम इज दैट, इज इट क्लियर। तो दिस डिफेक्ट इज नथिंग बट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखिए ये आयन में बहुत पूछे जाते हैं, और ये 16 नंबर का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि ये क्रिस्टल है पूरा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Ni98, मतलब कि अगर डिफेक्ट नहीं है निकल ऑक्साइड में तो रेशियो है 1:1। तो इसमें Ni2+ मिसिंग है, तो हायर चार्ज एक्वायर बाय निकल Ni3+। तो आपको पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni2+ एंड Ni2+ कितने होंगे उसमें और Ni3+ कितने होंगे, क्योंकि डिफेक्ट तो प्रेजेंट है, ये क्रिस्टल दिखा रहा है कि इसमें मेटल नहीं है। इज इट क्लियर। तो आपको स्टार्ट करना है हर बार, फर्स्ट पॉइंट, सपोज निकल 2+ प्रेजेंट X, सपोज निकल 2+ present is equal to X, clear। then after X%, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, X%। so therefore निकल 3+ present is equal to, टोटल तो 98 है, 0.98, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 98 - X, 98 - X। तो Ni2+ का चार्ज कितना हुआ टोटल, ऑक्सीजन तो पूरा है 100%, देखिए ऑक्सीजन इज कंप्लीट दैट। अब ये X है, तो देयरफॉर चार्ज ऑफ निकल 2+, चार्ज ऑफ निकल 2+, 2X, तो चार्ज ऑफ निकल 3+ कितने हैं, 19 - X, तो 3 × 98 - X,
3 into 98 minus x. इज इट क्लियर? तो अब ये पूरा क्रिस्टल तो न्यूट्रल है, मैं वो बार बार ये देखिएगा सॉल्यूशन हर बार ऐसे ही स्टार्ट करना है आपको एवरी टाइम. इज इट क्लियर? नाउ राइट डाउन crystal is overall neutral, so therefore और ऑक्सीजन तो पूरा 100% है. ये सब परसेंटेज में है ना, x परसेंटेज ये है 98 माइनस एक्स परसेंटेज. तो चार्ज में हम ऐसा कर सकते हैं ना कि निकल 2+ मतलब कि उसका चार्ज 2x, निकल 3+ उसका चार्ज है 3 इंटू 98 माइनस एक्स. ये हमने लिए हैं परसेंटेज में. और इसका चार्ज और ऑक्सीजन का चार्ज 2 है. और आप ऐसे भी लिख सकते हो किसी भी क्रिस्टल हम ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 इज इक्वल टू 0. क्रिस्टल इज ओवरऑल न्यूट्रल. ये निकल 2+ का कितना है x इंटू 2. निकल 3+ कितने हैं 98 माइनस एक्स इंटू 3 -2. इज इट क्लियर? अब 98 जो हमने ले लिए हैं मतलब कि 0.98 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 98 निकल एटम्स आर एसोसिएटेड विथ 100 ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, 98 0.98 का मतलब क्या हुआ कि 98 निकल एटम्स. अगर आप ऐसे करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है थोड़ा समझिएगा, देर लगेगी लेकिन मुझे पूरा आपको समझाना है. फॉर्मूला क्या है, निकल 0.98 ऑक्सीजन 1.0. ये डिफेक्ट वाला क्रिस्टल है. इसका मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन पे 0.98 निकल है, तो 100 ऑक्सीजन पे 98 निकल होंगे. 100 ऑक्सीजन पे 98 निकल होंगे. इसे क्लियर? तो यहाँ पे ये परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा समझिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, आप नोट कर लो. तो यहाँ वहाँ पे 200 हम कर सकते ना. इफ 0.98 nickel present per 1 oxygen, therefore 98 nickel present पर 100 ऑक्सीजन. तो ये परसेंटेज की बात आ गई, तो ये 98% हो गए. 100 ऑक्सीजन पे कितने हैं, तो मैं ये वाला जो है इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ. ठीक है, इसको ये 98 जो है 100 पे है, तो आप इसको मत लिखिए, अब इसको निकाल दीजिए. मैं इसको लिख रहा हूँ फिर से, और ये परसेंटेज भी निकाल दीजिए, ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, ये परसेंटेज भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. x 98 माइनस एक्स, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे. अब मैं पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल दिखा रहा हूँ. देयरफॉर 2x, ये निकल 2+ है, 3 इंटू 98 माइनस एक्स, ये निकल 3+ है. ऑक्सीजन 100 है, 1 का 2, तो 100 का -200 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ये 2x प्लस ये 98, 8 3 जा 24 और 29, 294 माइनस 3x इज इक्वल टू 200. ठीक है, तो ये होगा x इज इक्वल टू 94. अब x क्या है, निकल 2+. तो अब निकल 2+ के आपको परसेंटेज फाइंड करने हैं. वो परसेंटेज मत लेना, वो फ्रैक्शन ले लेना, x और 98 माइनस एक्स ये लिख के. ठीक है, तो देयरफॉर काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे. देयरफॉर और एक ही मेथड से सोल्व होंगे, इसमें कोई मतलब कि ड्यूअलिटी और दूसरी मेथड नहीं, ऐसे ही सब सॉल्व करने हैं आपको. x इज इक्वल टू 94, तो टोटल कितने 98.
तो 98 में कुछ Na2 प्लस है, कुछ Na3 प्लस है. सो देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ, मतलब परसेंटेज, फ्रैक्शन ऑफ, ये 94 क्या आया, x मतलब Na2 प्लस, फ्रैक्शन ऑफ Na2 प्लस इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो ये कितना आया, 96% उसमें Na2 प्लस है. सिमिलर वे Ni3 प्लस कितने आए, Ni3 प्लस इज इक्वल टू 98 माइनस x इज इक्वल टू 98 माइनस 94. तो वो कितने हैं, 4. अब इसके फ्रैक्शन निकालो, चलो. देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ Ni3 प्लस इज इक्वल टू 4 अपॉन, सो देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह कम है, फ्रैक्शन ऑफ Ni3 प्लस is equal to 4 upon 98 multiplied by 100 is equal to 4%. आ गया. फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारा क्रिस्टल है. आपको सपोज करना लेना है, परसेंटेज मत लिखना. फिर से मैं ले रहा हूँ, सपोज Na2 प्लस एक्स, Na3 प्लस 98 माइनस एक्स. ऑक्सीजन को 1 से 100 कर दिया है. ठीक है, तो चार्ज कितना हुआ Na2 प्लस का, टोटल x है तो एक Na का 2 प्लस तो 2x. Na3 प्लस का चार्ज कितना हुआ, 3 इंटू 98 माइनस एक्स. अब ये स्टेटमेंट लिख लो कि 0.98 Ni प्रेजेंट पर ऑक्सीजन, देन इफ 100 ऑक्सीजन इज देयर देन 98 Ni. तो ये Ni मिक्सर है, उसमें से कुछ Na2 प्लस है, कुछ Na3 प्लस है. ये क्रिस्टल पूरा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा करते हैं ना कि पूरा सबको ऐड करके इक्वल टू 0. तो निकल 2 प्लस का 2x चार्ज, निकल 3 प्लस का ये 100 ऑक्सीजन का ये, तो पूरा न्यूट्रल है तो इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे तो x मिलेगा, तो x जो है वो Na2 प्लस है. अब उसका फ्रैक्शन फाइंड कर लो, बाकी Na3 प्लस का फाइंड कर लो. ऐसे आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, एक होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए लिखिए, फाइंड, ये होमवर्क में, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस इन Fe 0.93O. ये पहला प्रॉब्लम. सेकंड Fe 0.94O. तीसरा प्रॉब्लम Fe 0.95O. और चौथा प्रॉब्लम Fe 0.96O. ये चार आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, सेम मेथड पे जाना है. कितने फ्रैक्शन मिल रहे हैं वो आपको, ये तो 93 है ना, तो ये आंसर तो यही आएगा. यहाँ पे 98 है, सॉरी ये नहीं आएगा. ये सब चार प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है. इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस. ये सब में डिफेक्ट है. ये चार बहुत बार पूछा जा चुका है. इसमें से कोई भी आता है कि फाइंड आउट Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस फ्रैक्शन प्रेजेंट इन दिस क्रिस्टल. इज इट क्लियर? तो ये चार आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं. ओके, अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट और बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.